انداز بیاں۔ دوستو آداب، قاضی عبدالستار کا افسانہ پیتل کا گھنٹا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 8ویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لاری کو دھکا دیا اور ڈھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے، لیکن انجن گنگنایا تک نہیں۔ ڈرائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا۔ کنڈکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا۔ مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگیں اور ہونٹ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سگریٹ بنانے لگا۔ ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے 2 درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط کھردرے دیہاتی نے میری چٹکیوں سے آدھی جلی ہوئی تیلی نکال لی۔ میں اس کی بے تکلفی پر ناگواری کے ساتھ چونک پڑا، مگر وہ اطمینان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا۔ یہ کون گاؤں ہے؟ میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یو بھوسول ہے۔ بھوسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آ گئی۔ میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے ٹوک کر روک دیا۔ وہ کلاسیکی کاٹ کی بانات کی اچکن اور پورے پائچے کا پاجامہ اور فر کی ٹوپی لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی سفید پوری مونچھیں اور حکومت سے سینچی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمتگاروں کے ہاتھوں سے پھولوں کی بدیاں لے لیں اور مجھے پہنانے لگے۔ میں نے بل کھا کر اپنی بنارسی کی پوت کی جھلملاتی ہوئی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلخی سے کہا، کیا یہ کافی نہیں تھی؟ وہ میری بات پی گئے، بدیاں برابر کھیں، پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، اب تشریف لے جائیے۔ میں نے ڈیوڑھی پر کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ تھے۔ بتایا گیا کہ یہ بھوسول کے قاضی انعام حسین ہیں۔ بھوسول کے قاضی انعام حسین، جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا۔ میرے بزرگوں سے ان کے جو مراسم تھے مجھے معلوم تھے۔ میں اپنی گستاخ نگاہوں پر شرمندہ تھا۔ میں نے اندر سے آ کر کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دیں۔ جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بھوسول آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس رشتے سے پہلے بھی تم میرے بہت کچھ تھے، لیکن اب تو داماد ہو گئے ہو۔ اس قسم کے رسمی جملے سبھی کہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دیے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی بس کو دیکھتا رہا، پھر اپنا بیگ جھلاتا ہوا جتے ہوئے کھیتوں میں اٹھلاتی ہوئی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی جسے قاضی انعام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا۔ مسجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکان کا سلسلہ تھا، جن میں شاید کبھی بھوسول کے جانور رہتے ہوں گے۔ ڈیوڑی کے بالکل سامنے 2 اونچے آم کے درخت ٹرانک کے سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے۔ ان کے تنے جل گئے تھے، جگہ جگہ مٹی بھری تھی۔ ڈیوڑی کے دونوں طرف عمارتوں کے بجائے عمارتوں کا ملبہ پڑا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ وہاں اس وقت نہ کوئی آدم تھا نہ آدمزاد کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے۔ لمبے قد کے جھکے ہوئے ڈوریے کی قمیض، میلا پائجامہ اور موٹر ٹائر کے تلووں کا پرانا پمپ پہنے ہوئے، ماتھے پر ہتھیلی کا چھجا بنائے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ جواب دینے کے بجائے وہ میرے قریب آئے اور جیسے یکدم کھل گئے۔ وہ میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑی میں گھس گئے۔ ہم اس چکردار ڈیوڑی سے گزر رہے تھے جس کی اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ دھنیوں کو گھنے ہوئے بدصورت شہتیر روکے ہوئے تھے۔ وہ ڈیوڑی سے چلائے، ارے سنتی ہو؟ دیکھو تو کون آیا ہے۔ میں نے کہا، اگر صندوق بندوق کھولے بیٹھی ہو تو بند کر لو جلدی سے۔ لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھی، دھلے ہوئے گھڑونچی کے پاس۔ دادا ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ وہ بھی شرمندہ کھڑی تھیں۔ پھر انہوں نے لپک کر الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسیٹ لی۔
और दोपट्टे की तरह ओढ़ ली। चादर के एक सिरे को इतना लंबा कर दिया कि कुर्ते के दामन में लगा दूसरे कपड़े का चमकता पैबंद छुप जाए। इस एहतमाम के बाद वो मेरे पास आईं, कांपते हाथों से बलाएं लीं, सुख और दुख की गंगा जमनी आवाज में दुआएं दीं। दादी कानों से मेरी बात सुन रही थीं, लेकिन हाथों से जिनकी झुर्रियां भरी खाल झूल गई थी, दालान के इकलौते साबित पलंग को साफ कर रही थीं, जिस पर मैले कपड़े, कत्थे चूने की कलियां और पान की डलियां ढेर थीं, और आंखों से कुछ और सोच रही थी। मुझे पलंग पर बिठाकर दूसरे झूला जैसी पलंग के नीचे से वो पंखा उठा लाईं जिसके चारों तरफ काले कपड़ों की गोट लगी थी। वो खड़ी हुई मेरे उस वक्त तक झलती रहीं जब तक मैंने छीन न लिया। फिर वो बावर्ची खाने में चली गईं। वो एक 3 दरों का दालान था, बीच में मिट्टी का चूल्हा बना था। अल्मुनियम की चंद मैली पतीलियां, कुछ पीपे, कुछ डब्बे, कुछ शीशे, बोतल और 2-4 इसी किस्म की छोटी मोटी चीजों के अलावा वहां कुछ भी न था। वो मेरी तरफ पीठ किए चूल्हे के सामने बैठी थीं। दादा ने कोने में खड़े हुए पुराने हुक्के से बेरंग चिलम उतारी और बावर्ची खाने में घुस गए। मैं उन दोनों की घुन घुन करती सरगोशियां सुनता रहा। दादा कई बार जल्दी जल्दी बाहर गए और आए। मैंने अपनी शेरवानी उतारी, इधर उधर देखकर 6 दरवाजों वाले कमरे के किवाड़ पर टांग दी। नक्शी किवाड़ को दीमक चाट गई थी। एक जगह लोहे की पत्ती लगी थी, लेकिन बीचों बीच गोल दायरे में हाथी दांत का काम कत्थे और तेल के धब्बों में जगमगा रहा था। बैग खोलकर मैंने चप्पल निकाले और जब तक मैं दौड़ूं, दादा खरौंची और घड़ा उठाकर उस लंबे चौड़े कमरे में रख आए जिसमें एक भी किवाड़ न था, सिर्फ घेरे लगे खड़े थे। जब मैं नहाने गया तो दादा अल्मुनियम का लोटा मेरे हाथ में पकड़ाकर मुजरिम की तरह बोले, तुम बेटे इत्मीनान से नहाओ, इधर कोई नहीं आएगा। पर्दे तो मैं डाल दूं, लेकिन अंधेरा होते ही चमगादड़ घुस आएगी और तुमको दिख करेगी। मैं घड़े को एक कोने में उठा ले गया। वहां दीवार से लगा अच्छी खासी सेनी के बराबर पीतल का घंटा खड़ा था। मैंने झुक कर देखा। घंटे में मुंगरियों की मार से दाग पड़ गए थे। 2 उंगुल का हाशिया छोड़कर जो सुराख था उसमें सूत की काली रस्सी बंधी थी। इस सुराख के बराबर एक बड़ा सा चांद था। उसके ऊपर 7 पहल का सितारा था। मैंने तौलिए के कोने से झाड़ कर देखा तो वो चांद तारा भुसौल एस्टेट का मोनोग्राम था। अरबी रस्मुल खत में काजी इनाम हुसैन ऑफ भुसौल एस्टेट अवध खुदा हुआ था। यही वो घंटा था जो भुसौल की ड्योढ़ी पर ऐलाने रियासत के तौर पर तकरीबन 1 सदी से बजता चला आ रहा था। मैंने उसे रोशनी में देखने के लिए उठाना चाहा, लेकिन एक हाथ से उठा न सका। दोनों हाथों से उठाकर देखता रहा। मैं देर तक नहाता रहा। जब बाहर निकला तो आंगन में काजी इनाम हुसैन पलंग बिछा रहे थे। काजी इनाम हुसैन जिनकी गद्दी नशीनी हुई थी, जिनके लिए बंदूकों का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था, जिन्हें हर अदालत तलब नहीं कर सकती थी, दोनों हाथों पर खिदमतगारों की तरह तबाख उठाए हुए आए, जिसमें अलग अलग रंगों की 2 प्यालियां लबसोज लबबंद चाय से लबरेज रखी थीं। एक बड़ी सी प्लेट में 2 उबले हुए अंडे काट कर फैला दिए गए थे। शुरू अक्टूबर की खुशगवार हवा के रेशमी झोंकों में हम लोग बैठे नमक पड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि दरवाजे पर किसी बूढ़ी ने हाँक लगाई। मालिक। कौन? मेहतर है आपका। साहब जी का बलाबे आए हैं। दादा ने घबराकर एहतियात से अपनी प्याली तबाख में रखी और जूते पहनते हुए बाहर चले गए। अपने भले दिनों में इस तरह शायद वो कमिश्नर के आने की खबर सुनकर भी न निकले होंगे। मैं एक लंबी टहल लगाकर जब वापस आया तो ड्योढ़ी में मिट्टी के तेल की डिबिया जल रही थी। दादा बावर्ची खाने में बैठे चूल्हे की रोशनी में लालटेन की चिमनी जोड़ रहे थे। मैं ड्योढ़ी से डिबिया उठा लाया और इसरार करके उनसे चिमनी लेकर जोड़ने लगा।
हाथ भर लंबी लालटेन की तेज गुलाबी रोशनी में हम लोग देर तक बैठे बातें करते रहे। दादा मेरे बुजुर्गों से अपने ताल्लुकात बताते रहे, अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहे। कोई आधी रात के करीब दादी ने जमीन पर चटाई बिछाई और दस्तरखान लगाया। बहुत सी अनमल बेजोड़ असली चीनी की प्लेटों में बहुत सी किस्मों का खाना चुना। शायद मैंने आज तक इतना नफीस खाना नहीं खाया। सुबह मैं देर से उठा, यहाँ से वहां तक पलंग पर नाश्ता चुना हुआ था। देखते ही मैं समझ गया कि दादी ने रात भर नाश्ता पकाया है। जब मैं अपना जूता पहनने लगा तो रात की तरह इस वक्त भी दादी ने मुझे आंसुओं भरी आवाज से रोका। मैं माफी मांगता रहा। दादी खामोश खड़ी रहीं। जब मैं शेरवानी पहन चुका, दरवाजे पर यक्का आ गया, तब दादी ने कांपते हाथों से मेरे बाजू पर इमाम जामिन बांधा। उनके चेहरे पर चूना पुता हुआ था, आंखें आंसुओं से छलक रही थीं। उन्होंने रुंधी हुई आवाज में कहा, ये 51 रुपए तुम्हारी मिठाई के हैं और 10 किराए के। अरे अरे दादी, आप क्या कर रही हैं? अपनी जेब में जाते हुए रुपयों को मैंने पकड़ लिए। चुप रहो तुम्हारी दादी से अच्छे तो ऐसे वैसे लोग हैं, जिसका हक होता है वो दे तो देते हैं। गजब खुदा का, तुम जिंदगी में पहली बार मेरे घर आओ, मैं तुमको जोड़े के नाम पर एक चिट भी न दे सकूं। मैं भैया, तेरी दादी तो फकीरन हो गई, भिकारन हो गई। मालूम नहीं कहां कहां का जख्म खुल गया था। वो धारों धार रो रही थीं। दादा मेरी तरफ पुश्त किए खड़े थे और जल्दी जल्दी हुक्का पी रहे थे। मुझे रुखसत करने दादी डेवढ़ी तक आईं, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। मेरी पीठ पर हाथ रखकर और गर्दन हिलाकर रुखसत कर दिया। दादा काजी नाम हुसैन ताल्लुकादार भुसौल थोड़ी देर तक यक्के के साथ चलते रहे, लेकिन न मुझसे निगाह मिलाई न मुझसे खुदा हाफिज कहा। एक बार निगाह उठाकर देखा और मेरे सलाम के जवाब में गर्दन हिला दी। सुधौली, जहां से सीतापुर के लिए मुझे बस मिलती, अभी दूर था। मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि मेरे यक्के को सड़क पर खड़ी हुई सवारी ने रोक लिया। जब मैं होश में आया तो मेरा यक्के वाला हाथ जोड़े मुझसे कह रहा था, मियाँ इल्ली शाह जी भुसौल के साहूकार हैं, उनके यक्के का बम टूट गया है, आप बुरा न मानो तो इल्ली शाह बैठ जाएं। मेरी इजाजत पाकर उसने शाह जी को आवाज दी। शाह जी रेशमी कुर्ता और महीन धोती पहने आए और मेरे बराबर बैठ गए और यक्के वाले ने मेरे और उनके सामने पीतल का घंटा दोनों हाथों से उठाकर रख दिया। घंटे के पेट में मुंगरी की चोट का दाग बना था। 2 उंगुल के हाशिए पर सुराख में सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके सामने काजी इनाम हुसैन ऑफ भुसौल स्टेट अवध का और चांद तारे का मोनोग्राम बना हुआ था। मैं इसे देख रहा था और शाह जी मुझे देख रहे थे और यक्के वाला हम दोनों को देख रहा था। यक्के वाले से रहा ना गया, उसने पूछ ही लिया, का शाह जी घंटा भी खरीद लायो? हाँ, कल शाम मालूम नाई का वक्त पड़ा है मियाँ पर कि घंटा दे दीन बुलाए के ई। हाँ, वक़्त वक़्त की बात है शाह जी, ना ही तो ई घंटा। अरे घोड़े की दुम, रास्ता देख के चल। ये कहकर उसने चाबुक झाड़ा। मैं मियाँ का बुरा वक्त चोरों की तरह बैठा हुआ था। मुझे मालूम हुआ कि ये चाबुक घोड़े के नहीं मेरी पीठ